السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 3، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ نظام آباد کلکٹر کے طور پر الا ترپاٹھی کو کیا مقرر۔ کلکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے والے ونے کرشنا ریڈی کو GHMC ایڈیشنل کمشنر کے طور پر کیا گیا تبادلہ۔ ریاض کے مقدمے کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم پر پیسوں کو غبن کرنے کے الزامات اس ٹیم کا حصہ رہے۔ ایک ممبر کا بیان، پیسوں کے مطابق ریاض کے فیملی نے بھی کیا لا علمی کا اظہار۔ تلنگانہ میں گورنمنٹ ملازمین کے لیے ادائیگی عمل میں لانے والے زیر التوا بلوں میں دسمبر سے متعلق 700 کروڑ روپے کی گئی اجرائی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے محکمہ فائنانس عہدیداروں کو دی ہدایت۔ معروف پین کلر نیمیسولائڈ نامی دوا کی تیاری و فروخت پر مرکزی حکومت نے پابندی عائد کی۔ نامنتخب سرپنچ عوام کو درپیش مسائل حل کریں۔ ریاستی زرعی بانسواڑہ MLA پوچارام سرینواس ریڈی نے شہر کے پارٹی دفتر میں مستحقین کو اندرامہ الو سے متعلق دستاویزات کے علاوہ کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چکوں کو کیا حوالے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا آج سے آغاز، ہزاروں کی تعداد میں زائرین کی شرکت۔ بانسواڑہ حلقہ و ریاست تلنگانہ کی مشہور و معروف درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا آج سے آغاز عمل میں آ گیا ہے۔ سندل مبارک متولیان محمد اسحاق، محمد نذیر و شیخ قیوم کی قیام گاہ میں واقع جلال پور سے نکالا گیا اور بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درگاہ پر پیش کیا گیا۔ بروز جمعرات 1 جنوری کو چراغاں و قوالی کا پروگرام رہے گا اور 2 جنوری بروز جمعہ فاتحہ خوانی کے بعد عرس شریف کا اختتام عمل میں آئے گا۔ عرس شریف کے انتظامات ریاستی وقف بورڈ کی جانب سے وقف بورڈ تحصیلدار محمد آصف علی خان، شمیم عارف اسسٹنٹ سیکریٹری، امیر احمد اسسٹنٹ سیکریٹری، محمد ابراہیم EO کے علاوہ وقف بورڈ انسپکٹر صدام حسین و ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جمال کی زیر نگرانی میں انتظامات کیے گئے اور زائرین کی کثیر تعداد نے سندل میں شرکت کرتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ ریاض کے کیس کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم پر پیسوں کو غبن کرنے کے الزامات اس ٹیم کا حصہ رہے۔ ایک ممبر کا بیان، پیسوں کے مطابق ریاض کی فیملی نے بھی کیا لا علمی کا اظہار۔ ریاض انکاؤنٹر کیس کو لے کر ایک نیا خلاصہ سامنے آیا۔ کل ایک انٹرویو کے دوران ریاض انکاؤنٹر کیس کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ایک ممبر رہے ایڈوکیٹ فراست نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ریاض کی فیملی کو ایک بڑے لیڈر کی جانب سے 7 لاکھ روپے کی رقم دی گئی تھی، جس میں سے ریاض کے بچوں کو 2-2 لاکھ کی FD یعنی فکسڈ ڈپازٹ کروانا تھا اور والدہ اور ان کی بیوی کو 3 لاکھ روپے دینے تھے، مگر فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جانب سے ریاض کی فیملی کو صرف 50,000 حوالے کیے گئے، جس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم پر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی ان پیسوں کا غلط استعمال ہوا یا ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لے لیا گیا۔ ریاض کے افراد خاندان سے اس بارے میں پوچھا گیا
तो तब इन्होंने 7 लाख के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया और 50,000 रुपये ही मिलने का इजहार किया। फैक्ट फाइंडिंग टीम को चाहिए कि वो इस बारे में वजाहत दे और इस मामले का खुलासा करे। मेरा नाम सनोबर नाजमीन है। मैं मरहूम रियाज की अहलिया हूँ। फैक्ट फाइंडिंग टीम में कौन कौन से आपके पास आए जब? सारा मैथ्यूस, खालिदा परवीन, समीर एडवोकेट, फिरासत अली, ताज, जलाल भाई, माजिद, ये लोग थे। कल एक वॉग मीडिया चैनल हैदराबाद का है, एडवोकेट फिरासत का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बोला कि 7 लाख रुपए आपके नाम से आए थे। वो 7 लाख रुपए आपके पास पहुंचे? नहीं पहुंचे भैया, हमको इस बारे में मालूम भी नहीं। ये 7 लाख रुपए का फिरासत भाई जो बोल रहे ना फेसबुक पे, कल ही इंटरव्यू में आया तो मालूम है हमको। कितने पैसे पहुंचे आपके पास? 50,000 पहुंचे खाली। और एक इल्जाम भी ये लगा है कि जो दिल्ली लेके गए थे, जब जमात इस्लामी के मलिक मोहतसिम जो है ना, आपको 25,000 रुपए दिए थे, इसमें से आपके पास कितने पैसे आए थे? 10,000 थे वो लिफाफे में, 25,000 नहीं थे। तो 15,000 कम थे। तो मैं समीर भाई फोन करे थे, पूछे कि कितने पैसे उसके अंदर, बोल तो 10,000 ही निकले भैया, उन्होंने पैसे नहीं दिए 15,000। बोल तो खालिदा मैडम 15,000 फोन पे डाल दिए। अभी जो एडवोकेट फिरासत अली बोले कि 7 लाख रुपए आपके यहाँ नाम पे आए, क्या वो सच है या फिर उन्होंने उनके तौर पे बोल रहे हैं? उन्होंने हमारे घर पे भी आए थे, हमको दिल्ली में भी उन्होंने हमारे साथ में थे। और ये जो पैसों के बारे में फिरासत भी जो आवाज उठाए ना, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये फैक्ट फाइंडिंग की जो भी टीम हमारे घर पे पहुंचे थे ना, जिसके पास भी हमारे पैसे है वो हमको ला के दे दो, वापस हमारे तक पहुंचा दो। आप लोगों को मेहरबानी होगी, मेरी तरफ से जल्दी ला के दे दो। हमको भी बच्चे है, मैं भी बेवा हूँ। एक बेवा औरत के पैसे लेना अच्छा नहीं रहता। आप लोग आए मेरी मदद के वास्ते, लेके गए दिल्ली, सही से मैं मानती, मगर मेरे को ये भी बात का अफसोस हो रहा कि अरे पैसे आए तो नहीं दिए, बोले वैसा अफसोस हो रहा। जल्द से जल्द हमारे पैसे हमको ला के दे तो बहुत अच्छा रहेगा। रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शहर के पार्टी दफ्तर में मुस्तहिकीन को इंदिरा इल्लू की मंजूरी से मुतालिक दस्तावेजात के अलावा कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चकों को किया हवाले। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के में रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और आगरू चेयरमैन के बालराज ने शहर बांसवाड़ा के पार्टी दफ्तर में चंदू रुद्र मंडलों के मुस्तहिकीन को इंदिरा इल्लू की मंजूरी से मुतालिक दस्तावेजात के अलावा कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चकों को फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब के दौरान कहा कि हालिया मुनक़िदा ग्राम पंचायत इंतखाबात में नव मुंतखब सरपंच अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिश करते हुए हमेशा इनके लिए दस्तयाब में रहकर अवाम की तारीफें बटोरने की ख्वाहिश की और हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के बारे में मंडल से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुकीम अवाम को आगाही फराहम करते हुए हुकूमत की स्कीमात के समरात से मुस्तफीद करवाने की ताकीद की। हुकूमत की जानिब से अहले अफराद व खानदान को इंदिरा इल्लू की मंजूरी अमल में लाई गई है और इन्हें हुकूमत की तरफ से किस्तों के तौर पर बैंक अकाउंट में रकम जमा की जाएगी। इंदिरा इल्लू के मुस्तहिकीन व इन रकूमात का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करें और इससे मुतालिक ओहदेदारान इंदिरा इल्लू के मुस्तहिकीन अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताउन करते हुए इन्हें हुकूमत की जानिब से रेत की फराहमी अमल में लाते हुए इंदिरा इल्लू की तामीरी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए ताउन करना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि माँ बाप अपनी दोख्तर की शादी के लिए दरकार अखराजात के लिए अपनी जायदाद और खेत को फरोख्त ना करें, बल्कि अपनी माशी हालत के मुताबिक शादी के अखराजात को बर्दाश्त करें। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद अवाम से किए गए वादे के मुताबिक हर एक गारंटी स्कीम को मरहलावार तरीके से रूबे अमल में लाते हुए हकीकी मुस्तहिक अफराद खानदान को स्कीम के समरात से फ़ायदा पहुँचाने के लिए इससे मुतालिक ओहदेदारान को मुतहरिक किया गया है ताकि हुकूमत की स्कीमात के फ़वाइद से हकीकी मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इन्होंने अवाम को साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। ఇక పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా నేను బీచ్ పెట్టుకుంటా, పాటలు పెట్టుకుంటా, ఓ ఇల్లు అనుకుని చూడు పండుగ అన్నట్టు చూసుకుంటే అప్పుల పాలవుతాను. అప్పుల పాలైన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఎవరు కూడా ఆదుకో, ఉన్న అమ్ముకోవాల్సి వస్తే వడ్డీ సరిపోక, కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోకుండా ఉన్నంతని మెదులుకోవాలి. సింపుల్ గా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి సంసారం సుఖంగా ఉండాలి. అప్పుల పాలు రాకండి. నాకు తెలుసు అప్పుల బాధ ఏందో, వడ్డీ కట్టలేక వస్తాం మనం.
రూపాయి వడ్డీ, 4 రూపాయల వడ్డీ, 5 రూపాయల వడ్డీ అవసరానికి కొంచెం తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి అట్లా అవసరం పోకండి, ఉన్నంత మట్టుకు మెదులుకుందాం. కాబట్టి ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర కూడా అవన్నీ కూడా మీరు బాసాలు కొనలేదు, ఆ బాసాలు కుర్చీలు కొనండి. పెద్దలకు చెప్తున్నా, చక్కగా వాళ్ళు వస్తారు, పెళ్లి చేసుకొని పోతారు. ఆ ఫంక్షన్ హాల్ దానికి చక్కగా రావడం, పెళ్లి పిల్లలు తీసుకొచ్చడం, పెళ్లి పిల్లలు తీసుకురావడం, అది తయారు చేయడం, అక్షంతలు అయితే పూజ చేసి పంపించడం. बालकोंडा मंडल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा मंडल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्तलिया सुनील रेड्डी की सालगिरह तकारीब को बालकोंडा मंडल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कायदीन व कारकुनान की मौजूदगी में जन्मदिन का केक कट करते हुए खुशी का इजहार किया। बादशाह मंती आश्रम का दौरा करते हुए वहां पर मौजूद बच्चों को बिस्किट और फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बालकोंडा मंडल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्तलिया सुनील रेड्डी को दी गई गहराइयों के साथ सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में बालकोंडा मंडल सदर जी वेंकटेश गौड़, कांग्रेस पार्टी सरपंच मंडल के कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डोंगी मंडल के मोगा देहात में नव मुंतखब सरपंच बसवंत हाले ने दही अवाम को दिए गए वादे के मुताबिक तरक्याती कामों का किया आगाज। डुंगली मंडल के मुकाम पर वाक़ मोगा देहात में नव मुंतखब सरपंच बसवंत हाले ने इंतखाबी वादे के मुताबिक दही अवाम को दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए तरक्याती कामों को शुरू किया। वो मूसलाधार बारिश के सबब सड़क की खस्ता हालत होने के बाइस गाड़ियों की आमद व रफ्त का मुतासिर होने से गाँव में सुकूनत पजीर अवाम को होने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए अतराफ व अकनाफ के इलाके में मौजूद कचरा और घास को हटाने के अलावा महलों में बरकी लाइट की तंसीब और गंदे किनारों की सफाई के कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के बाइस गाँव में मुकीम अवाम सरपंच बसवंत हाले की कारकर्दगी से इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल के हल के अलावा हुकूमत की स्कीमात की समरात से हर एक अहले अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाते हुए देहात की तरक्की के लिए फ़ंड की मंजूरी अमल में लाने के लिए कोशिश करते हुए देहात में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच बसवंत हाले, अनिल नरसिम्लू लाइनमैन के अलावा मौजू के अवाम ने शिरकत की। नया साल पुरअमन तरीके से मनाने की इंदलवई SIG संदीप की अवाम से अपील। इंदलवई सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जी संदीप ने अपनी सहाफती बयान में कहा कि नए साल के जश्न के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने और आवाम की हिफाजत के लिए कुछ उसूल जारी किए। खास तौर पर शाहराहों और सड़कों पर केक नहीं काटना चाहिए और इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट टाइम शेड्यूल पर अमल करें। जश्न में मंशियात या दीगर मामनुआ अशिया इस्तेमाल करने पर मुतज़म्मिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस मनसूख और कैद की सजा होगी। SI ने कहा कि तेज रफ्तार से ड्राइविंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, तेज रफ्तार और साइलेंसर के शोर से परेशानी पैदा करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। इन्होंने कहा कि शी टीम तकारीब के दौरान खवातीन के साथ बदतमीजी करने वालों पर कड़ी नजर रखने का इजहार किया। నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మరి నూతన సంవత్సరం అన్నది ఎంతో ఆనందాలతో ఆహ్వానించాల్సిన దినం కాబట్టి దీంట్లో ఎటువంటి చట్ట వ్యతిరేక పనులు అంటే మద్యం దాగి బైక్లు నడపడం కానీ, వాహనాలు నడపడం కానీ, మద్యం బయట సేవించడం కానీ, లేకపోతే మైనర్లు డ్రైవింగ్ చేయడం కానీ, లేదంటే మన ముగ్గురు నలుగురు వేసుకొని బైక్ల శబ్దాలు అధిక శబ్దాలు చేసుకుంటూ రోడ్డు మీద కానీ వాహనాలు చేస్తే ఈరోజు మొత్తం మనం ఇందల్వాయి మండలంలో ప్రతి దగ్గర చెకింగ్ చేయబడను ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో కాబట్టి జాగ్రత్త వహిస్తూ ఆనందాలతో న్యూ ఇయర్ సంబరాలు చేసుకోండి. మరియు డీజేలు కానీ వేరే అధిక శబ్దాలతో పెట్టి ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా న్యూ ఇయర్ జరుపుకోవాలని కోరుతున్నాము. మరియు మరొకసారి इस माह की 25 से 28 तारीख तक जिला करीमनगर में मुनक़िद होने वाले 72वीं इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर वुमेन मुकाबला जात के लिए KGBV बालकोंडा की तालिबा लक्ष्मी नायना हुई मुंतखब।
जिला करीमनगर में इस माह की 25 से 28 तारीख तक मुनक़िद होने वाले 72वां इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर मेन और वुमेन कबड्डी मुकाबला जात के लिए जिला निज़ामाबाद वुमेन टीम की तरफ से हिस्सा लेने के लिए मुंतखब होने वाली KGBV बालकोंडा तालिबा लक्ष्मी नायना को KGBV बालकोंडा SO भवानी सीनियर कबड्डी खिलाड़ी और जिम ट्रेनर राजकुमार के अलावा मुकामी स्कूल के जिम ट्रेनर राधिका और स्कूल अमले की जानिब से मुबारकबाद दी गई। मारूफ पेन किलर नेमुसेलाइड नामी दवा की तैयारी व फरोख्त पर मरकजी हुकूमत ने पाबंदी आयद की। मरकजी हुकूमत ने सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मारूफ पेन किलर दवा नेमुसेलाइड की ज़्यादा डोज वाली तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। सेहत के शोबे से वाबस्ता हुक्काम के मुताबिक मुंह के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली 100 mg या इससे ज़ायद डोज पर मुश्तमिल नेमुसेलाइड अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तक़सीम फौरी तौर पर बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। इस फैसले से कबल ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से मशावरत की गई, जिसके बाद मरकजी वजारत सेहत ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। वजारत सेहत ने वाज़े किया कि 100 mg से ज़ायद डोज वाली नेमुसेलाइड इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जबकि इसके महफूज मुतबादिल अद्वियात भी दस्तियाब हैं, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। हुक्काम के मुताबिक यह पाबंदी ज़्यादा डोज वाली नेमुसेलाइड पर लागू हो गई, ताहम कम डोज फार्मूला हस्बे साबिक दस्तियाब रहेगा। नेमुसेलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, जिसके मुज़िर असरात बिलखुसूस जिगरपन मुनफी असरात के खदशात पर पहले ही माहिरीन खबरदार करते रहे हैं। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद नेमुसेलाइड पर मबनी पेन किलर तैयार करने वाली फार्मा कंपनियों को अपने पैदावार फौरी तौर पर रोकनी होगी, जबकि मार्केट में मौजूद ज़्यादा डोज वाली अद्वियात को वापस रिकॉल किया जाएगा। हुकूमत इससे कबल भी सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ ज़्यादा डोज अद्वियात पर पाबंदियां आयद कर चुकी है। निज़ामाबाद कलेक्टर के तौर पर इला त्रिपाठी को किया मुकर्रर। तेलंगाना में बाज़ IAS ओहदेदारों के तबादले चीफ सेक्रेटरी के रामा कृष्णा राव के अहकामात जारी किए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बाज़ IAS ओहदेदारों के तबादलों और तकर्रुरात के अहकामात जारी किए। इन अहकामात के मुताबिक ग्रेट हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के एडिशनल कमिश्नर्स के तौर पर G श्रीजन और T विनय कृष्णा रेड्डी को मुकर्रर किया गया है। इसी तरह नलगोंडा के जिला कलेक्टर के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले इला त्रिपाठी का तबादला करते हुए इन्हें निज़ामाबाद का जिला कलेक्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि नलगोंडा जिले के नए कलेक्टर के तौर पर बड़गू चंद्रशेखर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नारायण पेट के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर उमा शंकर प्रसाद का तकर्रुर अमल में लाया गया है। तेलंगाना में गवर्नमेंट मुलाजिमीन को अदायगी अमल में लाने वाले ज़ेर इल्तवा बिलों में दिसंबर से मुतालिक 713 करोड़ रुपए जारी किए गए। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन को हर माह गुज़िश्ता गवर्नमेंट की जानिब से 700 करोड़ रुपये के तहत जारी किए जाने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। इस मरहला के तहत नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस माह के फंड को जारी करने के लिए महकमे फाइनेंस को हिदायत दी। कुछ माह से मुलाजिमीन को ग्रेजुएटी GPF सरेंडर लीव एडवांस से मुतालिक ज़ेर इल्तवा बिलों में इजाफा होने से तकरीबन 10,000 करोड़ तक पहुँच गया है, जिससे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जून में एहतजाज के लिए तैयार होने से हर माह 700 करोड़ के तहत जारी करने का इस माह में हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया। पहली बार जून के आखिरी में 183 करोड़ रुपये जारी किए। इसके बाद अगस्त से 700 करोड़ रुपये के तहत जारी किए जा रहे हैं। निज़ामाबाद प्रेस क्लब सदर के तौर पर पंचारेड्डी श्रीकांत ने फतेह हासिल की। निज़ामाबाद प्रेस क्लब में मुनक़िदा इंतखाबात में सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करने के बावजूद भी सदर के तौर पर श्रीकांत ने भारी अक्सरियत के साथ फतेह हासिल की और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से वाघमारे सुभाष ने फतेह हासिल की। नायब सदर की हैसियत से बी संगीता संतोष गौड़ ने जीत हासिल की और खजांची के तौर पर राजू ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की हैसियत से राजू को मुंतखब किया गया और ज्वाइंट सेक्रेटरियों के तौर पर सुरेश रवि नायक और अंजलियों ने फतेह हासिल की। जर्नलिस्ट मित्रुలకు ధన్యవాదాలు।
నా విజయంలో తోడ్పడినటువంటి స్టాఫ్ రిపోర్టర్స్ కావచ్చు, ఎడిటర్స్ కావచ్చు, వీడియో జర్నలిస్టులు కావచ్చు, ఫోటోగ్రాఫర్స్ కావచ్చు, అలాగే డెస్క్ జర్నలిస్టులు కూడా వారందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. అలాగే నా ఉర్దూ జర్నలిస్ట్ మిత్రులు కూడా మా విజయానికి ఎంతో తోడ్పడ్డారు. ఇవి కేవలం ఎన్నికలు ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే, ఇది కాదు. మా మిత్రులు కూడా గతంలో చాలా మంచి పనులు చేశారు. ఇక మా బాడీ పైన నమ్మకం ఉంచి ఇంత పెద్ద భారీ మెజార్టీ ఇచ్చినటువంటి మా సోదరులందరినీ వారు అనుకున్నటువంటి ఏదైతే ప్రధాన సమస్య ఉందో ఇళ్ల స్థలాలు, ఆ ఇళ్ల స్థలాలను త్వరితగతిన ఆ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు निजामाबाद मंडल के तिरमनपल्ली देहात में वाक़ ZPHS स्कूल में टीचर के ओहदे से सुबुकदोश होने वाले टी भागकेश्वर को DEO अशोक ने तहनीत अमल में लाई। निजामाबाद मंडल के तिरमनपल्ली देहात में वाक़ ZPHS स्कूल में गुज़िश्ता 16 सालों से बाहैसियत टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले तराइम भागकेश्वर की आज ओहदे से सुबुकदोशी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साल 2009 से तिरमनपल्ली में टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए तुलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि आज मैं ओहदे से सुबुकदोश होने के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद DEO अशोक तशरीफ लाकर तहनीत अमल में लाना काफी खुश आइंद होने का इजहार किया। ఒక్కరోజు కూడా ప్రేయర్కు లేని అంటే నేను గొప్పగా చెప్పుకోవడం అనేది కాదు. పిల్లలు మీకు అందరికీ ఏంటంటే మనం ఒక క్రమశిక్షణ, దృఢ నిశ్చయం, ఒక సంకల్పం మనము అనుకుంటే అది సాధించాలి, దాని పట్ల మనం కృషి చేయాలి అనే విషయాన్ని మీ ముందుంచడానికి నేను ఈ ప్రయత్నం నా యొక్క ఈ ప్రయత్నం. మరి మండల రిసోర్స్ పర్సన్గా కానివ్వండి, అనేక పాఠశాలలు, బిల్డింగ్లు కట్టించడం జరిగింది. అప్పట్లో VEC సభ్యులు, VIO సభ్యులతోటి అనేక బిల్డింగ్లు మా ప్రాంతంలో కట్టించడం జరిగింది. అలాగే ఎన్నో సంఘాలకి రుణాలు ఇప్పించడం జరిగింది. ఇవన్నీ అక్కడ అనేక పనులు చేసినాం. అలాగే మా మిత్రులు ఇక PRTU సంఘం టీచర్లకైతే నిజామాబాద్ అవసరం లేకుండా, నిజామాబాద్కు ఒక్క టీచర్ కూడా వచ్చే పని లేదు, అక్కడే పనులు చేయించేసినాం. మా మిత్రుడు అక్కడ పనిచేసిన మురళీధర్ సహచరుడు కూడా ఆ సమస్యలకు పరిష్కరించే విధంగా మరి మేడం గారు కూడా మీ ద్వారా చాలా వర్క్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మరి వారు కూడా అందరూ బాధపడుతున్నారు. అలాగే మా పిల్లలు కానీ మేము కానీ మాకు కూడా బాగుంది సార్, కానీ తప్పదు. మరి మీరు ఇప్పుడు అయిపోయిందని అనుకోవద్దు సార్. మరి కాకుండా ఈ వారం 10 రోజులకు వస్తారు, నెలకు इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर इला त्रिपाठी को किया मुकर्रर। कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले विनय कृष्णा रेड्डी को GHMC एडिशनल कमिश्नर के तौर पर किया गया तबादला। रियाज के मुकदमे की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर पैसों को गबन करने के इल्जामात इस टीम का हिस्सा रहे। एक मेंबर का बयान पैसों के मुताबिक रियाज के फैमिली ने भी किया लाइल्मी का इजहार। तेलंगाना में गवर्नमेंट मुलाजिमीन के लिए अदायगी अमल में लाने वाले ज़ेर इल्तवा बिलों में दिसंबर से मुताल्लिक़ 700 करोड़ रुपए की गई इजराई। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने महकमे फाइनेंस ओहदेदारों को दी हिदायत। मारूफ पेन किलर नेमेसोलाइड नामी दवा की तैयारी व फरोख्त पर मरकजी हुकूमत ने पाबंदी आयद की। नामुंतखब सरपंच अवाम को दरपेश मसाइल हल करें। रियासती जरी बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शहर के पार्टी दफ्तर में मुतहिकीन को इंदिरामा इल्लू से मुतालिक दस्तावेजात के अलावा कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चकों को किया हवाले। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।